Hello everyone and welcome to the lecture 4 of frequency domain analysis, and this time the target is to cover the stability criteria. यानी हम frequency domain में रहते हुए stability कैसे चेक करेंगे. प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा कि कैसे frequency response को डिटेल में एनालाइज करना तो फ्रीक्वेंसी डोमेन की एक्सपर्टीज़ है ही, इसी तरह कैसे हम स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं. और आज का हमारा टारगेट होगा कि हम नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे. So these are the targets for today, and see to understand the Nyquist stability criteria, no better ways than is there than to actually go for various examples. तो ज़्यादातर कोशिश हमारी examples करने पे ही होगी. Now in general the stability analysis for any closed loop system, we basically need to know the transfer function and that to the OLTF of the system, यानी open loop transfer function. इसकी कुछ बात हमने पहले करी भी है, यानी अगर ये कंप्लीट क्लोज लूप सिस्टम है और इसका ट्रांसफर फंक्शन आप जैसे कि देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें मालूम है दैट द अल्टीमेट थंब रूल इज द लोकेशन ऑफ पोल्स ऑफ द सिस्टम, और उसके लिए डिनोमिनेटर इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट हेयर. और चूंकि डिनोमिनेटर में अगर हम देखें 1 प्लस GSHS, in shortcut I am calling it 1 plus GH is equals to 0, will give us the roots of the characteristic equation. This is called characteristic equation. इसको solve करने पे हमें जो roots मिलेंगे they are called zeros of the characteristic equation. ये इसके zeros होंगे. तो अगर हम इनको ही निकाल लें या इन्हीं के एनालिसिस कर लें तो भी हम पूरे कंप्लीट क्लोज लूप सिस्टम के एनालिसिस कर सकते हैं. तो जो थंब रूल है ऑब्वियसली वो तो पोल्स को ही लेके है, that if all the poles of a system are to the left hand side then the system is stable. और अगर ऐसा होता है तो the GH, if you check it out here, all because GH is a complex quantity, it's a function of S एक complex frequency है, so GSHS यानी in shortcut GH is also a complex quantity. तो GH की वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 से कम रहता है और उसका फेज -180 डिग्री से दूर रहता है, छोटा रहता है, so the gain margin and phase margin GM and PM in shortcut both must be positive. अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तभी ऐसा होगा कि सारे पोल्स लेफ्ट हैंड साइड में होंगे और सिस्टम स्टेबल होगा. अभी हमने GM और PM यानी गेन मार्जिन फेज मार्जिन को इंट्रोड्यूस नहीं किया. इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल इंट्रोड्यूस दैट. दूसरा थंब रूल भी हमें पता है कि अगर कोई भी एक पोल क्लोज लूप सिस्टम का, क्लोज लूप अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस कंप्लीट इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए हमको पूरे ट्रांसफर फंक्शन की जरूरत नहीं है. वी कैन ओनली फोकस ऑन GH. दिस विल बी द ब्यूटी ऑफ स्टेबिलिटी एनालिसिस एनीवेयर, इवन इन द टाइम डोमेन मेथड्स लाइक इन Routh-Hurwitz और Routh-Locus methods, or in the frequency domain like Nyquist, polar, Bode plot. You would notice that in order to analyze the stability of the complete system, this complete system, the only important thing is to consider the transfer function, that is open loop transfer function या loop gain. हमको पूरे transfer function को लेके चलने की जरूरत नहीं है. जैसे मैंने कहा, stability is all dependent upon the denominator of the complete transfer function. So only GH analysis will be sufficient to do the stability of the complete transfer function. So if any of the pole is lying on the right hand side, gain margin या phase margin या दोनों ही negative हो सकते हैं. तो इसीलिए GH is equals to -1 को investigate करना, this becomes a very very crucial and important analysis here. Now the definition of gain margin and phase margin is like this. A gain margin, first of all let us define the gain and phase crossover frequency. So a gain crossover frequency जहाँ पे gain की वैल्यू exactly 1 हो जाए लीनियर स्केल पे, और अगर हम इसको डेसिबल स्केल पे यानी लॉगरिथमिक स्केल पे देख रहे हैं तो जब डेसिबल में गेन की वैल्यू 0 dB हो जाए, बिकॉज 1 का लॉग लेंगे राइट हैंड साइड तो दैट विल बी 0 dB. तो लीनियर स्केल पे जब गेन की वैल्यू, मैग्नीट्यूड गेन का अगर 1 हो जाता है, दैट फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो बाउंड्री केस है, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बीच का डिसीजन मेकर पॉइंट है. दैट इज व्हाई दैट फ्रीक्वेंसी इज इंपॉर्टेंट. सिमिलरली जहां पे फेज एग्जैक्टली 180 डिग्री या -180 डिग्री हो रहा है, दैट फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और ओमेगा PC. अब गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी में हम एक्चुअली फेज से कितना दूर हैं, दैट विल बी फेज मार्जिन. फेज के -180 होने से कितना दूर हैं. तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी तो हमने निकाल ली, जहां पे गेन की वैल्यू 1 हो रही है. अब वो -1 होगी कि नहीं होगी, दैट विल ओनली बी डिपेंडेंट अपॉन वेदर द फेज इज -180 और नॉट.
तो अगर फेज -180 नहीं है लेकिन उसने कितना दूर है, यानी फेज एग्जैक्टली एट ओमेगा जी सी गेन क्रॉसओवर पे, और वो -180 से कितना दूर है, दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू विल बी द मार्जिन बाय विच द सिस्टम विल बी स्टेबल एंड दैट विल बी कॉल्ड एज फेज मार्जिन। इसी तरह अगर फेज 180 या -180 हो गया है ओमेगा पीसी पे, तो ओमेगा पीसी पे माइनस साइन तो आ गया, लेकिन अभी वो 1 नहीं हुआ है, मैग्नीट्यूड 1 से थोड़ा छोटा है, तो कितना रेशियो से वो 1 से छोटा है, यानी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे द रेशियो और द फैक्टर बाय विच द गेन इज अवे फ्रॉम 1, अवे फ्रॉम बीइंग 1 और अवे फ्रॉम बीइंग 0 dB ऑन लॉगरिथमिक स्केल इज कॉल्ड द गेन मार्जिन, यानी इतनी वैल्यू से वो अनस्टेबिलिटी होने से बचा रहेगा। So both gain margin and phase margin must be large, huge if you are looking for a perfectly and relatively very stable circuit। GM और PM दोनों ही पॉजिटिव, GM का पॉजिटिव का मतलब लॉगरिथमिक स्केल पे, तो otherwise it should be less than 1। So gain margin and phase margin both they should be positive, and जितने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे सिस्टम उतना ही रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा। One important thing to notice in this case that the concept of gain margin and phase margin actually is applicable for minimum phase transfer functions only। यानी minimum phase transfer functions वो OLTF हैं, वो transfer functions हैं जहाँ पे number of poles are greater than or equal to number of zeros। हम OLTF की बात कर रहे हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की। इसी तरह कोई भी जीरो या कोई भी पोल राइट हैंड साइड पे नहीं होना चाहिए, zero and pole both, and the third important case is that there should not be any repetitive or multiple poles on the imaginary axis onto each other। So if these three cases are met, then the system or the transfer function OLTF is called minimum phase transfer function। और ऐसे ही ट्रांसफर फंक्शन को लेके हम क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी एनालिसिस गेन मार्जिन या फेज मार्जिन के साथ कर सकते हैं। तो यहीं पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है इन दो पर्टिकुलर मेथड्स के बीच में, जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड्स हैं, निक्विस्ट एंड निक्विस्ट क्राइटेरिया एंड गेन मार्जिन फेज मार्जिन क्राइटेरिया। सो निक्विस्ट क्राइटेरिया की खूबसूरती यही है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द केसेस, इवन इफ योर OLTF और CLTF क्लोज लूप सिस्टम या ओपन लूप सिस्टम चाहे तो मिनिमम फेज हैं या नहीं है, इन बोथ द केसेस यू कैन यूज निक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। दिस इज द एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। ये आपको येस और नो में आंसर करेगा। By what margin the system is stable, that is exactly not under the criteria, but by Nyquist plot you can get that values also कि relatively कितना stable है, लेकिन actually Nyquist criteria absolute sense के लिए बना हुआ है। whereas the gain margin phase margin यानी relatively stability, stable है तो कितना ज़्यादा stable है, that could be determined by either the polar plot or the Bode plot। और इनके बीच में फ़र्क ये है that polar plot simultaneously in a single graph shows both the magnitude and phase of the GH, GS, HS या GJ ओमेगा, HJ ओमेगा, जबकि बोर्ड प्लॉट मैग्नीट्यूड को अलग फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट करता है और फेज को अलग फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट करता है। यानी यहाँ पे दो प्लॉट आउटपुट में आते हैं, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एंड दैट टू बोथ द प्लॉट्स आर इन लॉगरिथमिक स्केल, स्पेशली द गेन प्लॉट इज इन द लॉगरिथमिक स्केल। जबकि पोलर प्लॉट में हमें एक ही प्लॉट में दोनों बातें दिख जाती हैं। तो गेन या फेज की अगर जानकारी लेनी है, देन इन दैट सेंस द पोलर प्लॉट इज नॉट वेरी गुड टू प्रोसीड विद, क्योंकि डायरेक्टली गेन या फेज रीड कर पाना एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पे इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। लेकिन चूंकि दोनों बातें एक ही प्लॉट में दिख रही हैं, तो लॉट ऑफ कंक्लूजन्स एंड डिटेल्ड एनालिसिस कुड बी मेड इन पोलर प्लॉट। लेकिन इन दोनों ही प्लॉट्स का, पोलर प्लॉट एंड बोर्ड प्लॉट का लिमिटेशन ये है दैट दे आर ओनली एप्लीकेबल फॉर मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन, जैसा मैंने अभी कहा। Whereas Nyquist stability criteria is the generic criteria, it's a very powerful criteria। तो आज का टारगेट चूंकि Nyquist stability criteria है, जैसा अभी हमने हाईलाइट किया that we have to plot GH यानी OLTF all because 1 plus GH is equals to 0 is the only important thing to analyze। तो इसीलिए हम बजाय कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन को एनालाइज करने के, स्टेबिलिटी तो हमको इसी के लिए पता करनी है, लेकिन उसके एवज में हमें केवल GH का ही प्लॉट करना है, जिससे हमें कंप्लीट सिस्टम की स्टेबिलिटी भी पता चल जाएगी।
और ऐसा करने के लिए द कॉन्सेप्ट हेयर विच इज़ बीइंग यूज्ड इज बेस्ड ऑन द Cauchy's प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट. आई हैव मेंशनड इट देयर, यू कैन रीड इट आउट, लेकिन हम उसको एग्जाम्पल्स में ज़्यादा समझेंगे. और उसका कॉन्सेप्ट ये है दैट फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स एस प्लेन वी आर फॉर different values of, let's say, S1, I'll be having GH1, for some value S2 I'll be having GH2. That means for all right hand side S plane I'll try to obtain a closed loop that is also called contour, Nyquist contour into the GS plane. तो S plane से GS plane जिसको हम GH F plane भी कह रहे हैं, तो इनके बीच में जो मैपिंग होगी दैट इज कॉल्ड द कॉन्टूर मैपिंग. वो यहाँ पे इसलिए हो रही है दैट ऑल बिकॉज द इनपुट वेरिएबल इज नॉट अ सिंगल वेरिएबल. हमने पिछली कुछ क्लासेस में इस बात का जिक्र किया है दैट एस इन्वॉल्व्स बोथ द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. इसीलिए इनपुट को ही प्लॉट करने में या दिखाने में वी नीड अ कंप्लीट प्लेन. इसीलिए उस प्लेन में गुंजाइश नहीं बचती है कि हम आउटपुट भी प्लॉट कर पाएं. सो फ्रॉम द इनपुट प्लेन वी आर प्लॉटिंग द आउटपुट प्लेन, एंड दैट टाइप ऑफ मैपिंग इज कंटूर मैपिंग अंडर द Cauchy's principle of argument. That is subjected to complicated mathematics and detailed mathematics. I would refer you to go for a reference book for the same, but all because our target is to restrict to the Nyquist stability criteria और उसका यूज़ करते हुए स्टेबिलिटी पता करना. तो दैट आई विल लीव फॉर द डिटेल्ड एनालिसिस एंड फॉर द रेफरेंस बुक्स टू बी कवर्ड. सो फाइनली Nyquist स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है Z is equals to n plus p, where the p is the number of poles of OLTF. OLTF के कितने पोल्स राइट हैंड साइड में हैं, दैट इज दी P. OLTF के पोल्स आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जीरोस भी होते हैं. You can also call it that the zeros of characteristic equation, I'm sorry, the zeros of characteristic equation are the final poles of Z of the closed loop system. तो हमें Z पता करना है, P हमें given है, P is the poles of the OLTF in the right hand side, और N हम कहाँ से पता करेंगे, that will be number of encirclements of GS around -1 इन दी Nyquist प्लॉट. तो n को पता करने के लिए हमें पूरा Nyquist प्लॉट डेवलप करना है. सो द एनालिसिस ऑफ GH+1 इज इक्वल्स टू 0. तो हम एक काम कर सकते थे कि हम GH+1 का प्लॉट करें और उसकी एनालिसिस 0 यानी ओरिजिन के अराउंड करें, या फिर हम GH का प्लॉट करें और उसकी एनालिसिस -1 के अराउंड करें. सो ये हमने क्राइटेरिया यहाँ पे लिया है दैट विल बी प्लॉटिंग GH एंड विल एनालाइज इट अराउंड -1. सो n इज द नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स clockwise sense में in across the -1. So let us quickly move to the example. जैसा मैंने कहा ये सारी बातें आप theoretically वापस बैक जा सकते हैं समझने के लिए, लेकिन जल्दी से अगर समझना है तो the best thing is to proceed with the example. और पहला एग्जाम्पल मैं डिटेल में एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा ताकि अगले एग्जाम्पल्स में हम फटाफट स्लाइड्स के थ्रू आगे बढ़ सकें. So let's say this is the first example, type 0 system. आपको पता है the OLTF is not having any pole on the origin, so this OLTF is type 0. In fact, इस OLTF open loop system से बनने वाला closed loop system का type भी 0 है. तो type basically final closed loop system के लिए ही defined है. तो type 0 में दो poles हैं यहाँ पे. If you wish to proceed, अभी मैं पहला केस कंसीडर कर रहा हूँ जब केवल हमारे पास 1 plus ST1 ही है. Let's consider this only. So it is type 0 first order system. और जैसा कि Nyquist stability criteria में हमने डिस्कस किया that in the S plane I have to cover the complete S plane going from O to A, then A to B, then B to let's say C, and then C to O. So the complete right hand side to be covered, अगर complete right hand side को cover करना है, so this O to A will be going up to infinity, यानी this axis which is j omega and this axis which is real axis. So j omega axis में point A corresponds to omega tends to infinity and point C corresponds to omega tends to minus infinity. और ये जो बड़ा सर्किल है इसको चूंकि राइट हैंड साइड पूरा ही कवर करना है, सो इसका रेडियस इज इंफिनिटी. तो एनी पॉइंट, आई एम सॉरी, एनी पॉइंट ऑन दिस सर्किल विल बी
let's say r e to the power j theta, or you can call it r angle theta, where r tends to infinity एंड थीटा मूव्स. आप देखिए हमने क्लॉकवाइज सेंस में एस प्लेन कॉन्टूर लिया है, ये इनपुट वेरिएबल है जिसके लिए जीएस का प्लॉट किया जाएगा. तो ये बड़ा सर्किल चूंकि टारगेट है पूरा राइट हैंड साइड कवर करना, सो दिस इज गोइंग फ्रॉम प्लस 90 टू माइनस 90 इन द क्लॉकवाइज सेंस. सो ध्यान से देख लें, ओ से ए जाने में we are only varying the imaginary frequency ओमेगा, कोई रियल पार्ट नहीं है, और a यानी इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी तक हम जाते हैं. देन ए बी सी इज द सेमी सर्किल विद इनफाइनाइट रेडियस विद एंगल गोइंग फ्रॉम प्लस 90 टू माइनस 90 क्लॉकवाइज, और c से वापस हम o पे आ जाते हैं. तो अब चूंकि हम वी कैन नॉट हैव द प्लॉट्स फॉर ऑल इनफाइनाइट s और frequencies possible inside. So therefore we'll restrict only to the plot of the circumference of this graph. So I'm sorry, so now let us go step by step. The first step is to consider path OA. So for path O to A, S is only j omega, so you can write gs hs as g omega h omega, which is k upon 1 plus j omega t1. Now in this at o वाली वैल्यू पे चूंकि वी आर एट ऑरिजिन यानी ओमेगा टेंड्स टू 0 या ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, सो एट दैट GH value at omega is equals to 0, यहाँ पे अगर हम रखेंगे, so this comes around k, and at because this graph is applicable for all the points possible in between O to A, सारे रास्ते के लिए, O से A के सारे रास्ते के लिए ये वाला पॉइंट है. सो अगर हम A पे पहुंच रहे हैं at A, ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसा कि हमने कहा, so GH at omega tends to infinity in this. So omega, if omega tends to infinity, then it will dominate over 1 and will remain up with k j omega t1, where omega tends to infinity. अब डायरेक्टली इन्फिनिटी रखने से पहले मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी रखने से पहले हम अगर इसका फेज देखें, ऑल बिकॉज वी आर हैविंग j ओमेगा इन द डिनोमिनेटर, सो दिस विल हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ k अपॉन ओमेगा t1 and angle minus 90, क्योंकि j ओमेगा ऊपर आएगा, so this is a phase of minus 90 degree, and omega tends to infinity करने पे finally we have 0 minus 90. यानी कि point O is reflected, अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाना चाहें, so this point O is reflected on a value k which is k angle 0, यानी यहाँ कहीं पे, and let's say this is minus 1. And for point A, this is going to 0 minus 90, and 0 minus 90 का मतलब we are landing to the origin but with the minus 90 direction. So this can only be, sorry, this is only possible with this. अब ये जो कर्वी नेचर है, ये बल्जिंग शेप है, ये कम ज़्यादा हो सकता है, वी आर नॉट एग्जैक्टली वरीड अबाउट दैट, क्योंकि हमारा सारा इंटेंशन -1 का एनसर्कलमेंट देखना है, याद करिएगा. तो इसीलिए वी डोंट बॉदर कि एग्जैक्टली शेप कैसा है. हमने इनिशियल पॉइंट O, जिसको हम O डैश कह लें, तो O के लिए O डैश आ गया, और जब हम A पे जाते हैं तो O से A जाने पे पूरा ग्राफ इस तरह से मूव होता है और ये A डैश पॉइंट पे मिल जाता है. नाउ द सेकेंड पार्ट इज for path ABC. For path ABC, S is equals to R angle theta. So GSHS at R tends to infinity, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पे R बहुत बड़ा है. So this comes as K upon 1 plus T1 R angle theta, where R tends to infinity. तो अगर हम ये वैल्यूज रखें, सो जी एच वैल्यू विल बी के अपॉन T1 R, एंगल थीटा ऊपर आ जाएगा विद माइनस थीटा, एंड आई एम सॉरी दिस इज R, and with R tends to infinity we'll be having
0 माइनस थीटा, यानी इन सारे पॉइंट्स के लिए जो यहाँ पे प्लॉट आ रहा है वो 0 यानी ओरिजिन पे ही घूम रहा है, एंड माइनस थीटा मीन्स कहाँ से कहाँ घूम रहा है। तो एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्लॉट यहीं पे घूम रहा होगा, बट इफ़ यू विश टू चेक इट आउट, माइनस मीन्स क्लॉकवाइज का उल्टा, बार ऑफ क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ABC पाथ लिया हुआ था ये क्लॉकवाइज लिया हुआ है, एंड माइनस थीटा इंडिकेट्स इट शुड बी ऑपोजिट यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंड माइनस थीटा विल बी माइनस 90, सॉरी प्लस 90 टू माइनस 90, क्योंकि थीटा की डेफिनेशन इफ यू लुक एट फ्रॉम हेयर 90 टू माइनस 90 और वो माइनस के साथ है, सो दिस फाइनली बिकम्स माइनस 90 टू प्लस 90, यानी ABC के पाथ के लिए द Nyquist contour which we are getting, the Nyquist plot which we are getting is a circle of radius 0 and going from minus 90 to plus 90 and that to anti-clockwise. So ये कुछ ये कुछ इस तरह से जाता हुआ, तो एक सेमी सर्किल माइनस 90 से प्लस 90 और एंटी क्लॉकवाइज नेचर में, जीरो रेडियस का, ऑलमोस्ट जीरो रेडियस का, बहुत छोटा सा। देखिए ये इसकी फाइन डिटेल की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बट ऑल बिकॉज यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ द मैथमेटिक्स देयर, दैट्स व्हाई आई हैव शोन इट। और यहाँ पे पहुँचने का मतलब है दैट व्हेन वी आर मूविंग ऑन ABC वी आर मूविंग ऑन दिस, सो वी हैव रीच्ड टू C डैश एंड लास्ट पोर्शन इज पाथ C to O, क्योंकि अब हम C तक पहुंच गए हैं और C to O is actually the mirror image of O to A, so it is mirror of O to A। तो जैसा हमें O से A के लिए ग्राफ मिला था बिल्कुल वही ग्राफ मिलेगा विद द मिरर इमेज इफेक्ट, यानी कुछ ऐसा, और डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, ऑल बिकॉज यू कैन सी C to O इज गोइंग अपवर्ड एंड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0, और यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इसके चलते यहाँ पे पाथ का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। वो ऑब्वियस भी है, ऑल बिकॉज द contour has to be closed. So this is the complete Nyquist criteria, Nyquist plot, and at the end of this plot we can determine the stability using Z is equals to N plus P. तो P है यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द OLTF, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स राइट हैंड साइड में, राइट हैंड प्लेन में, चूंकि यहाँ कोई पोल नहीं है राइट हैंड साइड पे, सो P इज 0, एंड N इज नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट्स ऑफ -1, -1 का कोई एनसर्किलमेंट नहीं हुआ है क्योंकि सारा प्लॉट -1 के राइट हैंड साइड में ही कुछ कुछ फिनोमिना हो रहा है, सो द एनसर्किलमेंट ऑफ -1 इज टोटली अनऑल्टर्ड, सो N इज 0 here and hence Z is 0. So Z is 0 means these are the zeros of characteristic equation, that means these are the poles of the closed loop system on the right hand side. तो right hand plane पे closed loop system का कोई भी पोल नहीं है, इसका मतलब इस ट्रांसफर फंक्शन से बनने वाला closed loop system स्टेबल होगा क्योंकि उस closed loop system का कोई भी पोल राइट हैंड साइड पे नहीं है। तो जैसा इस एग्जाम्पल में हमने देखा, यही मेथड आप सबके लिए डिटेल में फॉलो करेंगे। और अगर हम देखें कि कोई अगर एक एग्जाम्पल नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन का हम लेते हैं, ये नॉन मिनिमम फेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक पोल राइट हैंड साइड पे है, चूंकि OLTF का है, सो वी शुड नॉट बी इन हरी दैट द क्लोज लूप सिस्टम विल बी अनस्टेबल, वी डोंट नो। उसके लिए आप Nyquist स्टेबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं, ऑल्दो इट्स वर्बली यू कैन चेक, इफ यू हैव अ यूनिटी फीडबैक देयर यू विल फाइंड द क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल। हमारा टारगेट चूंकि Nyquist स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ना है, Nyquist प्लॉट बनाना है, तो हम उसका बना के देखें, हमने डायरेक्टली रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। सो फॉर O to A ये पाथ बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, S प्लेन यानी ये इनपुट प्लेन है जिससे हमको मैप करना है, सो O to A दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट। आप देखिएगा पिछले एग्जाम्पल में भी द बिगर सर्किल इन द इनपुट वेरिएबल लैंडेड अप इनटू द स्मॉलर सर्किल, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है O से A, ABC फॉर मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शंस जनरली 0 के अराउंड ही रोटेट करता है, इसीलिए उसका -1 के एनसर्किलमेंट पे कोई फर्क नहीं होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन इग्नोर ABC इन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शंस, बट नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन में हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। C से O पे वापस, चूंकि वो मिरर इमेज है O से A की, उसके लिए मेहनत कर ही चुके हैं, तो
that finally concludes that the most important plot in all this S plane is for O to A, yani where S is equals to j omega, and this has a dedicated name and procedure named as polar plot. यानी O से A का जो plot आया था which is this one is basically nothing but the polar plot. तो Nyquist criteria करते समय we are simultaneously also covering polar plot, but in polar plot we need to know few more things. We have to do lot of other things for gain margin and phase margin. यहाँ चूंकि हमें gain margin phase margin नहीं निकालना है in Nyquist criteria, our focus is to check the Nyquist rule in the absolute sense for absolute stability. That is why we are not exactly bothered about, in detail we are not bothered about the shape and the cutting of the axes here. But if something significant happens around -1, then we should be cautious. तो यहाँ पे 0 से O से A का प्लॉट यानी पोलर प्लॉट जो आया वो ये आया, और ए बी सी विल रिवॉल्व अराउंड 0, यहाँ पे ये 0 है, यहीं पे रिवॉल्व होगा, और फिर C से O जाने पे देयर इज अ मिरर इमेज गोइंग बैक लाइक दिस, एंड दिस वैल्यू ऑल बिकॉज इट इज -2, देयर इज -1 समवेयर हेयर. तो अगर हम इसको फिट करें z इज इक्वल्स टू n प्लस p पे, तो p here there is one pole of the OLTF in the right hand side, so p is 1. और अगर आप clockwise -1 का encirclement देखें तो clockwise encirclement ना हो के ये anti clockwise encirclement है, so therefore n is actually -1 here. क्योंकि clockwise encirclement को हमें 1 कंसीडर करना है या 2 कंसीडर करना है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज encirclements होंगे तो वो नेगेटिव में होंगे, सो दैट इज वाई z इज अगेन 0. यानी इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से जो क्लोज लूप सिस्टम बनेगा उसका कोई भी पोल राइट हैंड साइड पे नहीं होगा, एंड हेंस दैट क्लोज लूप सिस्टम विल ऑल्सो बी स्टेबल. इसी तरह आई लीव सम एग्जांपल्स फॉर यू, यू कैन नाउ प्रोसीड फॉर सम हायर ऑर्डर सिस्टम्स. But it is very important to understand the effect of increasing the order. अगर हम फर्स्ट ऑर्डर से सेकेंड ऑर्डर की तरफ जाएं, the final result will be like this. अभी हमने देखा था कि हमारा प्लॉट कुछ इस तरह से आया था, where this was k. ये मैं एस प्लेन नहीं बना रहा हूं, ये मैं नाइक्विस्ट कंटूर बना रहा हूं जहां से हमें n सर्किलमेंट्स ऑफ -1 पता करने होते हैं. सो दिस इज -1, और यहाँ पे -1 के एनसर्किलमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा था व्हेन वी हैड ऑर्डर 1. लेकिन अगर यहाँ पे ऑर्डर 2 ले लिया है, देन द प्लॉट इन दिस केस विल बी लाइक दिस. सो दिस इज ऑर्डर 2. तो आप देखिए ऑर्डर 2 में भी -1 के एनसर्किलमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट मीन्स दिस सिस्टम इज अनकंडीशनली स्टेबल. k कुछ भी हो, t1 t2 कुछ भी हो, this system cannot do any movement around -1, so the -1 will remain intact. उसके encirclement पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, so this system will also be intact. लेकिन अगर हम यही चीज एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए करें, so this time because finally for path OA at A where omega tends to infinity, then all s will dominate and the magnitude will be k upon j omega t1 t2 t3 and j omega cube will be there. So this will land up to -270 degree. तो मैग्नीट्यूड तो इसका 0 जाएगा, लेकिन इसका फेज -270 पे जाएगा, एंड दैट इज वाई दिस टाइम इट विल बी लाइक दिस. Then the -1 encirclement criteria will be there. तो अब हमें देखना होगा कि -1 encircle हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मिरर इमेज इसकी कुछ ऐसे बनेगी, और -1 encirclement हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि k की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो ऐसा होगा. अगर k की वैल्यू 1 से छोटी रहती है तो चूंकि मैग्नीट्यूड मोनोटोनिकली डिक्रीज ही करना है, तो अगर k कुछ छोटा है 1 से, यहाँ पे है, सो दिस विल बी देन दिस. तो अब -1 का encirclement फिर से नहीं होगा. That means here we can see as the order of the system increases, there are certain cautions that we have to take, but a second order system with type 0 with any gain, it is unconditionally stable, whereas this is stable or unstable all depending upon k. यानी k की क्या वैल्यू है, इस पे सारी कहानी डिपेंड करेगी, और कुछ वैल्यूज t1 t2 t3 पे भी डिपेंड करेगी कि
क्या है. So with this we have practiced the major core part of the Nyquist stability criteria, but that is not definitely not sufficient enough. In the next class our target is to go for polar plot, and while doing polar plot I will also try to grab that opportunity to again bring in some examples of Nyquist, क्योंकि Nyquist stability criteria Nyquist plot का ही एक particular portion जो कि O से A के लिए है, that is polar plot. So we will meet again with the polar plot and Nyquist plot practice. Thank you.